students, a very warm welcome to all of you. I hope all of you are doing absolutely fine. My name is Anubha Gaur, your chemistry master teacher at Vedantu, and I welcome you all in the session. So my ICSE students, I hope you are in that stage. Ma'am, exam is coming very near. We really don't know what to do, what are the strategies we need to apply. So please stay tuned, see all the videos. Ma'am and all the teachers are trying their level best to help you all out. And I hope you're watching the videos of organic chemistry. Ma'am had made some videos. Acha, the best part is now we are on two channels. Your Anubha ma'am is on two channels. That's 9-10th Hindi channel as well as 9-10th English channel. So as syllabus of ICSE is like too much, what we did, we have divided every chapter of yours with the topics on both the two channel. Like some of the videos you will find on Hindi channel and some of the videos of the same chapter you will find on English channel as well. So do not forget to subscribe and see those videos as well. I hope you got it what I meant to say. And this is your very important chapter, that's electrolysis. And in electrolysis, what are we going to discuss today? Electrolytes and non-electrolytes in detail. So be very ready because हम जो करेंगे इसकी detail explanation करेंगे. Electrolysis होती क्या है, electrolytes क्या होते हैं, type of electrolytes in detail as well. So keep following, keep liking, sharing it to your friends and definitely अगर अभी तक channel को subscribe नहीं किया है तो बिल्कुल कर लो. Okay everyone, and Vedantu has some more thing for you. और वो क्या है, अगर आप भी इन सब में से कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो we can give you some of the solutions here. So some of the students generally say this to me कि मैम हमारे डाउट सॉल्व नहीं होते instantly. whenever we feel कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है then we feel stuck और आगे नहीं बढ़ पाते. तो आपके डाउट्स इंस्टेंटली सॉल्व हो सकते हैं एट आवर एक्चुअल प्लेटफॉर्म वेदांतु प्लेटफॉर्म, जहाँ पे विद मास्टर टीचर्स देयर विल बी अ टीम ऑफ क्लास टीचर्स टोटली डेडिकेटेड कि आपके डाउट सॉल्व हो सके. प्लस नोट्स मिले ताकि आप अपना 70 से 80% टाइम वेस्ट ना करो जस्ट बाय मेकिंग नोट्स. अच्छा ज़रूरी है बुलेट पॉइंट्स लिखना, बट इफ़ यू कीप ऑन राइटिंग फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स पढ़ोगे कब? तो बेटर मैनेजमेंट के लिए आपको हर सेशन के नोट्स अवेलेबल होंगे, हर 15 डेज में टेस्ट ताकि आप भूलो ना. यू नो ह्यूमन मेमोरी 21 डेज में हम सब भूल जाते हैं, तो रिविजन प्रॉपर चलता रहेगा. असाइनमेंट आफ्टर एवरी सेशन सो दैट यू विल डू इनफ क्वेश्चन, थोड़े ट्विस्टेड भी, ताकि कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक से आए यू लाइक वी आर मास्टर ऑफ दिस टॉपिक. या एवरीवन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन, लाइक अगर आपको अभी से जेई के लिए, नीट के लिए प्रिपेयर करना है, ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करना है, डेफिनेटली पॉसिबल है. यू विल गेट सम आईटी फाउंडेशन, नीट फाउंडेशन, these special classes as well. And the best part is with the choice of your own schedule and with the choice of your own language, that means English or English, you can choose among that. So it will be very easy for you. It's like you can choose your study accordingly the way you feel comfortable so that you will get enough confidence that yeah, बहुत simple है, बिल्कुल possible है, and you will get personalized attention of all the teachers too. सारा स्केड्यूल का प्रॉब्लम भी नहीं है अब तो ये सब कुछ मिल सकता है विद अनलिमिटेड लाइव क्लासेस कि अगर आपके पास टाइम है 8 to 10 क्लासेस अटेंड करो, क्रैश कोर्सेज साथ में, परफॉर्मेंस रिपोर्ट इन सेशन कि आप कैसा कर रहे हो, लीडर बोर्ड होते हैं, क्विजेस होती है बहुत अमेजिंग, और पर्सनलाइज अटेंशन भी मिलेगा. इट जस्ट यू नीड टू फॉलो सम ऑफ द स्टेप्स एंड स्टेप नंबर 1 इज देयर इज अ लिंक दैट इज गिवन बाय वेदांतु 910 चैनल. वेदांतु 910 चैनल ने पिन किया हुआ है. You have to click on the link, ये पेज खुल के आएगा. You have to select your target, that's ICSE 2021, and then you have to click on get subscription, ताकि आपके पास 3 मॉडल्स होंगे जिसमें से आप चूज कर सकते हो. मॉडल नंबर 1 फॉर 1 मंथ कि आओ देखो कि प्लेटफॉर्म कैसे वर्क करता है, इंपॉर्टेंट जो भी आपके चैप्टर से अकॉर्डिंगली कवर करो. और 1 मंथ के लिए you will get some extra discount because ma'am is telling her coupon code, that's AGPRO, Anubha Gaur Pro subscription. Okay, so 1 month के लिए आपको पहले वेदांतु डिस्काउंट के साथ 2699 पे करना था. After applying this code you can save 20% and just have to pay 2159. तो गुड डील. ओके, और अगर 3 मंथ्स की बात करूँ यू कैन सेव 31% ऑन MRP. और अब देखो इट्स जस्ट मॉनेटरी बेनिफिट, जहाँ आप 2159 पर मंथ पे कर रहे थे फॉर अ मंथ कोर्स,
फॉर अ मंथ कोर्स, नाउ फॉर 3 months आप पे करोगे 1866 रुपीज पर मंथ. 6 months for the same course you will pay 1533 rupees per month, which is not, very much at all. It's like putting your efforts in the right direction, and you are having the guidance of all the teachers. और monetary benefits के according आप choose कर सकते हो बिल्कुल. So link is given by Vedantu 19 channel in the description box, or do not forget to apply the coupon code, that's AGPRO. All right. So students, Vedantu has proved it again that how that's the best online class provider, because look at the result, amazing result. JEE Advanced is one of the toughest exam, you know that. और देखो Vedantu bagged टॉप 500 में 5 रैंक्स, टॉप 1000 में 11, टॉप 2000 44, टॉप 5000 121, टॉप 10,000 253 students. That's a very big list and achievement. See the amazing students, amazing faces in front of you. You can definitely be here. Just have trust in yourself. Just trust this platform as well. बिल्कुल पॉसिबल है, घर पे बैठ के भी पॉसिबल है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखते हैं आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे. यू नो दैट वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, और अच्छे से पढ़ेंगे. सारे के सारे आपके जो डाउट्स हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे. सो गिव मी हाई फाइव. Yes ma'am, it's possible and we will do it. Do let me know in the comment section. Yes, so I think you're super ready. Thumbs up तो बनता है. Let's go for our electrolysis. तो सबसे पहले डेफिनेशन पे ही फोकस करते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस है क्या. सो दैट एस्टैब्लिश बेसिकली अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, केमिकल चेंज. तो होता क्या है स्टूडेंट्स, इट्स लाइक अ प्रोसेस जहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके केमिकल चेंज करवा सकते हो और केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, सो यानी कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. और अगर मैं उसको आपको बताऊं इस वर्ड से आप क्या समझ रहे हो, दैट्स इटसेल्फ गिविंग द आंसर. इलेक्ट्रोलिसिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट्स इलेक्ट्रो प्लस लाइसिस. और इलेक्ट्रो का मतलब ही किससे है, इलेक्ट्रिसिटी से. और लाइसिस का मतलब क्या है, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, एज सिंपल एज दैट. तो इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का हेल्प से ब्रेक डाउन ऑफ योर केमिकल, ब्रेक डाउन ऑफ योर गिवन केमिकल. तो आप समझ में आया, इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस where we pass electricity from a given substance, and that will dissociate, that will break down, and some chemical change is going to occur. and जब वो टूटता है, वो chemical change जो हो रहा है, and those ions that I'm going to get starts moving towards respective metal rods that we will take. तो simple मतलब है, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ किया, उससे केमिकल चेंज किया, और जो भी हमें चाहिए, जो भी पर्पस था वो हमें मिल गया. या तो उसके लिए हमें बहुत सारी टर्म्स समझनी पड़ेगी. अगर हमें इलेक्ट्रोलिसिस समझना है, देयर मस्ट बी सो मेनी टर्म्स दैट मस्ट बी क्लियर इन आवर माइंड. तो बारी बारी से देख लेते हैं, क्योंकि ये हम बार बार यूज़ करेंगे ताकि आगे की सेशंस में भी आप सुपर डुपर क्लियर फील करो कि हाँ ये तो एकदम आता है. सबसे पहली बात है कंडक्टर. मैम ये तो बच्चों वाला सवाल है, विच अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो कंडक्टर्स कौन होते हैं स्टूडेंट्स. अब देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करेंगे, उससे केमिकल चेंज कराना है. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करने के लिए हमें कंडक्टर तो चाहिए, बिकॉज फ्रॉम दैट ओनली द इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो. ठीक है, वो मीडियम का काम कर रहा है. और एग्जाम्पल जो जनरली हम लेते हैं एज अ कंडक्टर, वो होते हैं मेटल्स. द रीजन बीइंग इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर गुड इलेक्ट्रॉन डोनर. जैसे इलेक्ट्रिसिटी उसमें से टकराती है, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स डिस्प्लेसिंग, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास कर सकती है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. So metals are good conductor of electricity. Please make a note. Okay, please make a note. Metallic elements can conduct electricity in what form? Solid state or in molten state. ये बात का भी ध्यान रखना. सोचो, आपको एक मेटल का रॉड चाहिए जिससे आप बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करोगे, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना चाहते हो, और मेटल आपने गैसियस फॉर्म में ले लिया. अरे मेटल कहाँ गया, नॉट पॉसिबल, राइट. यू कैन डेफिनेटली चूज सॉलिड स्टेट, और लिक्विड स्टेट में भी पॉसिबल है, मतलब मोल्टन फॉर्म में. ठीक है, तो दोनों आप प्रेफर कर सकते हो. या नॉन कंडक्टर्स जो हम प्रेफर नहीं करेंगे, बट हमें पता होना चाहिए नॉन कंडक्टर्स क्या होते हैं ताकि हम उनको यूज ना करें. दैट समथिंग दैट विल नॉट
allow electricity to flow from it, और definitely it's like opposite of metals, वो होते हैं नॉन मेटल्स. ठीक है, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर नहीं सकते, दे आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट इज गोइंग टू पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती. ठीक है, सो नॉन मेटल्स विल नॉट गिव इलेक्ट्रॉन फॉर दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ताकि इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके, सो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, अब ये जो टर्म्स है बारी बारी से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम इलेक्ट्रोलिसिस, कोई भी सब्सटेंस आपको मिले, चलो इलेक्ट्रोलिसिस में बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, हमें सारी टर्मिनोलॉजीज तो क्लियर हो. ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस की क्या प्रॉपर टर्मिनोलॉजी है, इलेक्ट्रोलाइट जो हम यूज करते हैं वो क्या होते हैं, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी पता होना चाहिए ताकि हम गलती ना करें चूज करने में. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है, एक उसका ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इलेक्ट्रोड्स क्या होती है. ठीक है, क्योंकि ये सब हमें पता होना चाहिए टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल. तो सबसे पहली बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस की, वो तो मैंने आपको बता दिया दैट द प्रोसेस ऑफ डीकॉम्पोजिशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड. अब जिस भी केमिकल कंपाउंड को आपको डीकम्पोज करना है, आपको याद होगा पहले की नॉलेज से दैट आइदर यू हैव टू टेक इट्स मोल्टन फॉर्म और इट्स एक्वा सोल्यूशन. कोई भी सॉल्ट लोगे, सपोज NaCl, सीधा इलेक्ट्रिसिटी पास कर ही नहीं सकती, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने के लिए वी विल बी नीडिंग फ्री आयॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन, और आयॉन्स अगर वो कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है तो कैसे पॉसिबल है, राइट. तो या तो आप उसको लिक्विड फॉर्म में लोगे, बेटर टर्म में हम बोलते हैं मोल्टन फॉर्म, कि एकदम लिक्विड नहीं किया है, बस ऑलमोस्ट उसके मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचा दिया है कि वो ऑलमोस्ट फ्री आयॉन्स हो जाए, या फिर आप लोगे एक्वा सोल्यूशन, पानी में डाल दो, सबसे सिंपल है, आयॉन्स में टूट जाएंगे, वाटर हेल्प्स टू ब्रेक योर सॉल्ट इनटू आयॉन्स. तो ये बात क्लियर है. So process of decomposition of a chemical compound in an aqueous solution or in molten form accompanied by a chemical change, जो कि chemical change कर रहा है by using direct electric current. हम DC current use करते हैं, बिल्कुल याद रखना, फिजिक्स में आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, डायरेक्ट करंट, बार बार करंट को चेंज करोगे प्रोसेस रिवर्स हो सकती है, जो हमें नहीं करना. ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस का इंटायर सेटअप है कि हमें बैटरी चाहिए, उसका नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल को हम इलेक्ट्रोड से जोड़ेंगे, मैम बताएगी इलेक्ट्रोड क्या होती है. यहाँ हम लेंगे वो एक्वा सोल्यूशन, वो मोल्टन फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड जिसका मुझे केमिकल चेंज कराना है. तो आई थिंक अब समझ आ गया. ठीक है, तो ये पॉइंट प्लीज नोट कर लो दैट केमिकल डीकॉम्पोजिशन of a chemical compound can be brought about by using electric current. यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा के केमिकल डीकॉम्पोजिशन कर रहे हैं. अब जो सब्सटेंस हमने लिया था उसको क्या बोलेंगे, जिसका एक्वा सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म, वो होता है इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, वो होता है इलेक्ट्रोलाइट. तो अगर हमें कोई पूछे कि इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट को डिफाइन कैसे करोगे, तो वी शुड नो दैट. तो चलो बिल्कुल कर लेते हैं. कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे स्टूडेंट्स जो एक्वा सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो नहीं करने देंगे, है ना. सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन बीइंग एन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट. जो करने देंगे उसके एग्जाम्पल है हमारे पास. अगर आप इनमें से किसी का भी मोल्टन फॉर्म और एक्वा सोल्यूशन ले लेते हो, NaCl, HCl, H2SO4 means some of the acid, some of the bases, some of the salts, they will dissociate completely in molten form or in aqueous solution form, and these ions will pass, and due to this conduction of electricity, this chemical change is occurring. Okay, passage of electricity is very much important. तो electrolyte की definition clear है. The compound that we have taken in either molten form or aqueous solution form that allows an electric current to pass through it, and we will get our desired chemical change. जैसे कि अगर मैं NaCl को ले लूँ, I'll be getting ions of Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. ठीक है, मैंने इसका मोल्टन फॉर्म लिया, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, अब ये आयॉन्स मिले मुझे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, they will go to the oppositely charged electrode and we will get our product that we wanted, my metal, my non-metal. Specifically in this case I'm talking about that sodium and chlorine. ठीक है, बहुत सिंपल है और समझ आता जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है,
क्योंकि हम इनफ एग्जाम्पल करेंगे, ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल मैम आपको देख रही है, जैसे मैंने आपको सोडियम क्लोराइड बताया, कॉपर क्लोराइड भी ले सकते हो। कॉपर क्लोराइड का सपोज मैंने एक्वस सोल्यूशन लिया, मेरे पास कॉपर आयॉन्स थे और क्लोरीन के आयॉन्स थे कॉल्ड एज क्लोराइड आयॉन्स। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगी, मेरे पास दो मेटल की रॉड है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज, इन्हीं को इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। So these ions will start moving towards these opposite electrode, and on one rod we will get copper, on one rod we will get chlorine gas. As simple as that, obviously oppositely charge होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो अब बात आती है कि मैम एक हमने लिए मेटालिक कंडक्टर जो आप अपने इलेक्ट्रोड्स को बोल रहे हो, एक हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया, ये मेटल रॉड्स भी कंडक्टर थे इलेक्ट्रिसिटी के और इलेक्ट्रोलाइट भी, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों ही कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो सो लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल। मेटालिक कंडक्टर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, where flow of current consists of single stream of electron from negative to positive terminal। कितनी सिंपल सी बात है, सोचो ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ठीक है। तो होता क्या स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, जो भी आपने मेटल लिए हैं, मेटल अपने में से इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड इन द मेटल और वो मूव करने लगते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, बिकॉज ऑपोजिट की तरफ ही जाएंगे, राइट। So these will start moving from negative terminal to positive terminal, electron starts moving। अब बात ये आती है कि उसके अलावा both in solid and liquid state they are good conductor of electricity। या तो मेटल को सॉलिड ले लो, बहुत अच्छी बात है, और in liquid form also that can conduct electricity। और अगर मैं बोलती हूँ they are conducting electricity by having this flow of ions, तो ये एक सिर्फ फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है, क्योंकि हमेशा याद रखना देन ऑल्सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विल बी मेंटेन्ड। मतलब क्या इस बात का, my metal is losing electron but they are not going somewhere else, they will be still there in that voids present in the metal। सपोज ये मेरे पास सोडियम मेटल है बहुत सारी, इसमें सोडियम सोडियम सोडियम, तो मेटल कंडक्टर इसलिए होता है क्योंकि जब भी वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा स्टूडेंट्स, लेट मी सी अनदर कलर पेन, जब भी वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा पॉजिटिव चार्ज और ये जो थोड़े थोड़े होल्स होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आने शुरू हो जाते हैं, ये आयॉन्स आयॉन्स सोडियम आयॉन्स, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मेटालिक कंडक्टर, आई होप ये बात क्लियर हो गई। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करूं, जो इलेक्ट्रोलाइट भी लिया था वो भी कंडक्टर है, उसमें क्या डिफरेंस है कि फ्लो ऑफ करंट जो होता है वो कहाँ होता है, टू स्ट्रीम, वन ऑफ पॉजिटिव आयॉन्स वन ऑफ नेगेटिव आयॉन्स। जैसे कि NaCl ही लिया था तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आई गॉट टू डिफरेंट आयॉन्स और दो तरफ दो स्ट्रीम ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे दिखाई देगा, दो तरीके से मेरा चार्ज कंडक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है, ऑपोजिट आयॉन्स विच आर देयर दैट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटायंस एंड एनायंस। और इलेक्ट्रोलाइट्स कब गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, आइदर इन एक्वस सोल्यूशन फॉर्म और इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन फॉर्म और एक्वस सोल्यूशन, बिकॉज ऑलमोस्ट उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ओवरकम हो जाता है, ऑलमोस्ट फ्री स्टेज में आ गए। और जब ये सोचो NaCl था, Na अलग Cl अलग और डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड पे जाना शुरू कर दिया उन्होंने, that is definitely bringing a chemical change, new products are formed। सोडियम क्लोराइड से मुझे सोडियम और क्लोरीन गैस मिल रहा है, न्यू प्रोडक्ट्स और केमिकल चेंज। आई होप नाउ इट्स क्लियर कि मेटालिक कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कैसे डिफरेंट होते हैं। मेटल रॉड्स जो हमने ली थी दोज वर मेटालिक कंडक्टर्स एंड दैट्स आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोलाइट जो हमने लिया था दैट्स इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और उसमें दो स्ट्रीम ऑफ आयॉन्स मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करके केमिकल चेंज होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसकी जो PDF है आपको आसानी से मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, थोड़े टाइम बाद अवेलेबल होगी बट बिल्कुल मिल जाएगी, ठीक है, तो डाउनलोड कर लेना। तो अब बात करते हैं ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात कर रहे थे, ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते कौन से सब्सटेंस हैं, दो तरीके से हम उनकी बात कर सकते हैं, वन इज आयोनिक कंपाउंड एंड वन इज पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, दे बोथ आर एक्टिंग एज इलेक्ट्रोलाइट। कैसे, बिल्कुल बात करते हैं, क्योंकि बताया था आपको कि इलेक्ट्रोलाइट में होता क्या है, ये ऑपोजिट आयॉन्स है जिनको मूव करना चाहिए। तो ये याद रखना, आयनिक कंपाउंड्स मोल्टन फॉर्म में और एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
क्योंकि ions free, because of flow of ions electricity can be conducted. ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में इतने हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये दोनों चिपके हुए हैं, इतने अच्छे से चिपके हुए हैं, दीज आर नॉट फ्री, एंड अगर फ्री नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, तो याद रखना मोल्टन फॉर्म में बिल्कुल करेगा, बस फर्क इतना है मोल्टन हम थोड़ा कम प्रेफर करते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है. अगर मैं आपको NaCl का एग्जाम्पल दूँ, सोडियम क्लोराइड, that will be needing around 800 and more degree Celsius temperature to overcome this force of attraction between Na positive and Cl negative ions. सोचो, और अगर मैं वाटर की बात करूँ तो बस आपको ऐड करना है NaCl वाटर में, आसानी से वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं एट रूम टेम्परेचर, बिकॉज वाटर हेल्प्स टू डिसोसिएट देम इनटू आयंस. वो जाके उन आयंस पे अट्रैक्ट करता है, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है, दैट्स यूजिंग टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन Na एंड Cl. तो दोनों मेथड इक्विवेलेंटली यूज करते हैं, बट आपको बता दिया डिफरेंस क्या है इसमें. बस एक फ़र्क ये है कि वाटर के आयॉन्स का यहाँ पे चांस हो सकता है इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करने का. बस इसमें इतनी सी गड़बड़ी है कि जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वाटर के जो आयॉन्स होते हैं H पॉजिटिव H नेगेटिव, दे आर लाइक वी विल ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ दिस कॉम्पिटिशन. तो बस इस बात का पता होना चाहिए. ठीक है, और वो करेंगे जब एग्जाम्पल करना शुरू करेंगे तो ये भी मैम बता देगी कि कौन जीतेगा. लाइक कॉम्पिटिशन की अगर मैं बात करें तो उसमें क्या होगा. ठीक है, polar covalent compounds are also good conductor of electricity because again the same reason, they are having some polarity, they are having some charge difference. तो अगर मैं HCl को लेती हूँ, आपको पता है क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. अब क्लोरीन बोलेगा कि हाइड्रोजन तुझसे ज़्यादा इन इलेक्ट्रॉन को मैं डिजर्व करता हूँ. सो ये जो शेयर किए हुए थे इन दोनों ने अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, क्लोरीन बोलेगा मैं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, and hydrogen is like तू भी क्या याद रखेगा. So hydrogen is getting the slight positive charge because electrons are going away from it, and chlorine पे आ जाता है slight negative charge because electrons are coming over it. Opposite charge आ रहा है चाहे small ही सही, तो इनको फ्री करना आसान है थोड़ा सा भी एनर्जी प्रोवाइड करके. तो they can also act as electrolyte because opposite ions can move. तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं. जैसे मैम ने बताया था एसिड्स, बेसिस, इवन सॉल्ट्स कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, बट एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं. देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड यू नो गुड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट्स, क्योंकि आयॉन्स का डिसोसिएशन हमें ध्यान रखना है. स्ट्रॉन्गर द एसिड, स्ट्रॉन्गर द बेस, मोर इजिली दे विल बी डिसोसिएटिंग इनटू आयॉन्स. तो हमें जब इलेक्ट्रोलाइट चाहिए ही तो लेट्स टेक अ बेटर कंडीशन ऑफ द सेम. ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, totally dissociating into ions. So that's why NaOH, KOH, very good bases. So better electrolyte, I should say. This is a kind of a weak base. तो comparatively weak electrolyte, but still ions में dissociate होता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ माइल्ड काइंड ऑफ अ बेस. तो इसमें सारे एग्जाम्पल मैंने इंक्लूड कर लिए, बाद में हम इनकी कैटेगरी भी पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के. ठीक है, सॉल्ट्स के एग्जाम्पल NaCl, कॉपर सल्फेट, लेड ब्रोमाइड, दे विल डिसोसिएट इनटू आयंस एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंडक्टेड. अब सोचना कैसा है, जैसा मैं हमने बता दिया, ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, या तो होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि स्ट्रॉन्ग और वीक में क्या डिफरेंस होगा, बिकॉज समहाउ आई टोल्ड यू. तो मैम पहले ही बता देती फिर क्वेश्चन पूछती है ना, जस्ट टू चेक कि समझ आया कि नहीं. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल भी देना बनता है. आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स. ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसा बताया, they'll completely dissociated into ions in fused or in aqueous solution. Fused का मतलब वही molten form, और aqueous solution form में they will completely dissociate. तो strong acid are good electrolyte, strong electrolyte, they'll dissociate completely. HCl you can take that. Okay, अगर मैं acid की बात करूँ, NaCl अगर मैं salt की बात करूँ. So these solution contain almost only free mobile ions. Mobile ions मतलब which are free to move. ठीक है, तो अगर ions free to move है, all the ions are free to move, not binding with the molecular form, तो वो strong नहीं होगा.
ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा ही होगा, एंड विच अलाउ अ लार्ज अमाउंट of electricity to flow from it. So it's like all the ions are free, able to dissociate completely, good conductor of electricity, and can allow very high good amount of energy in terms of electricity to pass through it. All right, तो जैसा मैम ने बताया एग्जाम्पल तो बनते हैं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, hydrogen chloride, sulfuric acid and nitric acid. Some of the example bases देखो फिर strong bases are strong electrolyte as well. KOH, NaOH. Salts आपके सामने है, NaCl तो ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल सॉल्ट है, NaCl हो गया, लेड ब्रोमाइड हो गया, कॉपर क्लोराइड हो गया, ठीक है, एक्वा सोल्यूशन के फॉर्म में लोगे या फिर मोल्टन फॉर्म में लोगे, इस बात को बिल्कुल याद रखना। तो अब आई थिंक ये तो अंडरस्टूड है, मतलब मैम ऑब्वियसली वीक होगा तो ऑपोजिट प्रॉपर्टी, राइट, जो स्ट्रॉन्ग है उसकी ऑपोजिट प्रॉपर्टी इज ऑफ योर वीक इलेक्ट्रोलाइट, सो दे आर पार्शियली डिसोसिएटिंग इन देयर फ्यूज्ड और एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म। तो सपोज अगर मैम आपसे बात करती है एसिटिक एसिड की, दैट्स देयर इन योर विनेगर, ये वीक एसिड है, वीक एसिड का मतलब ये प्रॉपर्ली डिसोसिएट नहीं हो पाता, तो इसलिए मैं ये डबल हेडेड एरो लगाती हूँ क्योंकि सम ऑफ दी ions will be again going to come back and make a molecule. तो कुछ फ्री आयोन्स की फॉर्म में होंगे, कुछ will come back to give you molecule. तो partial dissociation होता है, some are there in the free ions form and some are still there in the molecular form. Okay, so do remember that they contain ions as well as molecules. ठीक है, and poor conductor of electricity, not a very good conductor of electricity. इट्स लाइक अगर मैं बल्ब लगा के देखूंगी तो वो बल्ब बहुत डिम वाला ग्लो करेगा, बहुत कम ग्लो करेगा, ठीक है, क्योंकि आयॉन्स कम प्रोड्यूस करता है। तो रीजन भी ये है विच अलाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो फ्रॉम इट। द रीजन इज लेसर नंबर ऑफ आयॉन्स, सो लेसर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पास थ्रू इट। जितने फ्री आयॉन्स होंगे उसी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो जितने भी आपके वीक एसिड, वीक बेसिस के एग्जाम्पल है, या जनरली बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट के जो एग्जाम्पल होते हैं, यू कैन पुट दैट इन दिस कैटेगरी। कार्बोनिक एसिड जो सॉफ्ट ड्रिंक्स में पीते हो ठंडा, मतलब ये जितने भी होते हैं, कोका कोला, माउंटेन ड्यू के आगे जीत है, दैट कंटेन योर कार्बोनिक एसिड और आप पी सकते हो। योर विनेगर इज हैविंग एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड जो आपको स्पिनच टोमेटोज में मिलता है, ठीक है, ये COOH होता है 2 बार, ये होता है आपका। ऑर्गेनिक एसिड्स आर एनीवे वीक इन नेचर, ठीक है, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होंगे, बट स्टिल इलेक्ट्रोलाइट, डू रिमेंबर दैट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ माइल्ड बेस, दिस इज अ वीक बेस, दैट्स व्हाई salts, sodium carbonate, sodium bicarbonate, these are basic salt for your confirmations, तो याद रखना, you can put them into this category, weak electrolyte। और फिर एक और कैटेगरी है डेफिनेटली विच इज नॉट स्ट्रॉन्ग, विच इज नॉट वीक, दिस इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दे वॉन्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आउट ऑफ the same either in the aqueous solution form or in the molten form, so which neither in the solution nor in the molten state is going to allow electrical energy to pass through it। के हम तो नहीं करेंगे, कुछ भी कर लो, we will not dissociate, कुछ भी कर लो, कितना एनर्जी दे दो हमें, हम रिएक्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वो वाला केस है, मतलब they will not decompose into ions, so will not move to any electrode। जब आयॉन्स में डिसोसिएट नहीं होंगे तो ऑपोजिट वाले जो इलेक्ट्रॉड लगाए हैं हमने मेटल के, वहाँ कैसे जाएंगे, नहीं जाएंगे, ठीक है। और they do not have ions, as ma'am told you, they will always be in the molecular form। तो आपको पता है शुगर अगर आप पानी में डालोगे तो शुगर इज नॉट डिसोसिएटिंग इनटू एनी आयॉन्स। एक तरीके से ये समझ लो, दोज नॉन पोलर जो कंपाउंड्स थे, दे विल नॉट डिसोसिएट इनटू आयॉन्स, तो इनकी पॉसिबिलिटी है बीइंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो सम ऑफ द अदर एग्जाम्पल, यू हैव वाटर H2O बट इन द डिस्टिल्ड फॉर्म। डिस्टिल्ड का मतलब ही होता है डीमिनरलाइज्ड वाटर, मतलब देर आर नो मिनरल्स, ओनली प्योर H2O एंड दैट वोंट गिव यू एनी काइंड ऑफ आयॉन्स। वो जुड़ा होता है सारे के सारे एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है। केरोसिन की अगर मैं बात करूँ, एक हाइड्रोकार्बन है नॉन पोलर, कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर, बेंजीन नॉन पोलर, ग्लूकोज, यूरिया, शुगर, सम ऑफ द एग्जाम्पल,
कोवलेंट कंपाउंड के एग्जाम्पल है, याद रखना. सो कोवलेंट कंपाउंड्स आर बेसिकली नॉट ऑल बट ऑलमोस्ट नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. दे वोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आउट ऑफ द सेम. So these 3 points which is very much important, I hope is clear. Do let me know and hit the like button as if you like it. Yeah, electrolytic cell की बात करूँ students में, तो ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपको electrolysis that we do in electrolytic cell only. तो electrolytic cell क्या है? ये vessel है in which we are carrying electrolysis, और इसको वोल्टामीटर भी बोलते हैं बिकॉज वी आर काइंड ऑफ यूजिंग आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो वो वोल्टामीटर में आती है और उसी से हम केमिकल चेंज क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या काम करता है? इसी के अंदर माई इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंजिंग टू केमिकल चेंजेस, केमिकल एनर्जी. एक इसका ऑपोजिट भी होता है जिसको आपको इस क्लास में तो नहीं पढ़ना, दैट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. दैट्स टोटली ऑपोजिट. इन व्हाट सेंस? इस डिवाइस में आप क्या करते हो? केमिकल एनर्जी यूज करके, केमिकल चेंजेस की वजह से यू विल सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट्स गोइंग टू प्रोड्यूस. आप बल्ब लगाओगे, वो बल्ब ग्लो करेगा. केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है, और जिस प्रॉपर सेट ऑफ कनेक्शंस में ये होता है उसको इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. और एक और नाम है वोल्टाइक सेल और डेनियल सेल. ठीक है, तीन नाम है. तो होता कैसे? छोटा सा समरी बताएगी मैम उसका. ठीक है, ये पूरा सेटअप है आपके सामने. आप क्या करते हो? 2 बीकर चाहिए आपको इसको करने के लिए. एक में आप जिस भी मेटल को लेते हो उसी का एक्वस सोल्यूशन लेते हो. तो जिंक सल्फेट मतलब उसी का बना हुआ इलेक्ट्रोलाइट. फिर दूसरा इलेक्ट्रोड जो आपने लिया उसी का इलेक्ट्रोलाइट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट. एक का हो जाता है ऑक्सीडेशन, दूसरा का हो जाता है रिडक्शन. आपको पता है ऑक्सीडेशन में क्या होता है? Substance will lose electron and those electron will be passed to the one that's going to reduce itself, क्योंकि reduce करने का मतलब gain of electron. ये एक लाइन है, प्लीज याद कर लेना इसको. Leo goes to घर, that lion goes to घर. That means that loss of electron is oxidation and gain of electron is reduction. As simple as that. तो यहाँ पे जिंक जो है स्टूडेंट्स वो जुड़ा है एनोड से, और कैथोड पे जो होता है वो है मेरा कॉपर. तो एक बात याद रखना, ये कनेक्शन AO. ठीक है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पे होता है रिडक्शन. एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन. AOCR. ओके, एनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन. मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन होगा. जिंक क्या करेगी? जिंक जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी. जिंक इज लाइक आई एम अ मेटल एंड आई विल फुलफिल माई ड्यूटी. ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी. जिंक इज कमिंग टू अ वैलेंसी स्टेट विच इज गुड फॉर इट, +2, और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, और वो इलेक्ट्रॉन मूव करके जा रहे हैं किसके पास? कॉपर के पास. अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हमने कैसे डिसाइड किया कि जिंक और कॉपर में कॉपर को इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिंक को लूज करने हैं? बिकॉज रिएक्टिविटी सीरीज याद करो. In the reactivity series, tendency to lose electron decreases. So if I compare zinc and copper, zinc is more reactive than copper, means zinc has more tendency to lose electron as compared to copper. तो copper को जोड़ दिया, copper के पास option है, copper is like okay, I'm cool, I'll take the electron. तो zinc is losing electron and copper जो है उसका reduction होगा, that's gain of electron. कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. तो यहाँ पे कॉपर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? कॉपर +2 की फॉर्म में आना शुरू होता है. यहाँ पे उसका ये कॉपर आयंस है, यहाँ पे आने शुरू हुए, और कॉपर आयंस जैसे इसके पास आए उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, और कॉपर आयंस यहाँ पे आके डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं. जैसे इलेक्ट्रॉन मिला, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो. ठीक है, तो याद रखना जिंक इज डूइंग ऑक्सीडेशन, जिंक +2 स्टार्टेड कमिंग टू सोल्यूशन. ये इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ दिए, कॉपर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और कॉपर मेटल इस सोल्यूशन में से इस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है. ये पूरी प्रोसेस है, और जो हम पढ़ने वाले हैं दैट्स ओनली इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और आपको उस पर ज़्यादा डिटेल से ध्यान देना है. ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं इन वन सिंपल बीकर. आपके सामने इन वन सिंपल बीकर वी आर गोइंग टू टेक कैथोड एंड एनोड विद द बैटरी, और इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं. इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास कराएंगे, योर इलेक्ट्रोलाइट विल ब्रेक इनटू आयंस एंड स्टार्ट मूविंग टू क्रिएट अ केमिकल चेंज ऑन द इलेक्ट्रोड. तो ये इलेक्ट्रोड आई होप अब तो क्लियर हो गया. देयर मस्ट बी नो डाउट कि ये मेटल प्लेट्स भी हो सकती है, ये कार्बन रॉड्स भी हो सकती है इन फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, एज दैट्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी.
हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं जनरली, बट देखेंगे अभी वह तो नहीं है 10th क्लास में। तो ये जो सब इलेक्ट्रोड्स होते हैं, मतलब देयर मस्ट बी समथिंग दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट्स हाउ वी आर यूजिंग इट। या ओके, और जिसको हमने इलेक्ट्रोलाइट में डाला हुआ है। एनोड इज व्हाट? एनोड इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। कैसे याद रखोगे? एनोड अट्रैक्ट्स एनायन। इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, ए कनेक्शन। एनोड अट्रैक्ट्स एनायन एंड यू नो दैट एनायन इज नेगेटिव चार्ज, तो ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, दैट्स वेरी फेमस काइंड ऑफ थिंग दैट यू नो दैट एनोड अट्रैक्ट्स एनायन, एनोड नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, दैट मीन्स एनोड इज योर पॉजिटिव। ओके, सो एनोड इज द पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव कैसे होगा? That means anode is a metal rod that's connected to the positive terminal of battery, so it's getting positive charge. ठीक है, cathode just opposite of it, वैसे याद करना है, cathode attracts cation, cathode attract cations, cat connection, and you know that cation is positive, cat has pos, cation is positive. अगर ये पॉजिटिव कैटाइन की तरफ आ रहा है, then it must be negative. ठीक है, that means cathode is that metal rod that's connected to the negative terminal of the battery and acquiring a negative charge. ठीक है, तो it's like this kind of a connection. Let me try to help you. Okay, positive terminal, negative terminal. तो positive आ गया इस पे पूरा चार्ज, इस पे negative, तो ये हो गया मेरा एनोड और ये हो गया मेरा कैथोड, and we will dip it into what? We will dip it into an electrolyte. In what form? Molten form or in aqueous solution form. ठीक है, तो अब एक नोट है, इसका ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट इज टर्न्ड ऑन कैथोड, दैट इट इज गोइंग टू बिकम negative electrode, which electrons enter the electrolyte and anode comes positive electrode by which electron leave the electrolyte. मतलब सिंपल वर्ड में मैं आपको समझाऊं, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए आ रहा है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग अवे फ्रॉम एनोड एंड गोइंग टुवर्ड्स माय कैथोड। मतलब ये जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन का ऐसे है, that anode positive because electrons are going away from it and cathode is negative because electrons are coming towards it. तो ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। एनोड कैथोड में तो डिफरेंस प्रेटी मच क्लियर। ओके, कमेंट करते रहना, बताते रहना। एनोड इज द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी and anions migrate to anode. Anode attracts anion. Anions are coming towards it and anions are oxidized. Anode पे क्या होता है, मैम ने बताया था, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन लूज करके कहाँ जाते हैं, कैथोड की तरफ। ठीक है, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ा है, क्योंकि नेगेटिव है, केटाइंस विल माइग्रेट टू इट। और केटाइंस का क्या होता है, रिडक्शन। इट्स लाइक कॉपर आयंस, they are getting electron and getting reduced. Anode जैसे कि zinc था, they are losing electron and these electrons are the one that's moving towards cathode. तो I hope pretty much clear and I hope ये तो सबसे simple बात है, इसमें तो कोई denial होगा ही नहीं। And students hopefully इस बात में तो there is no denial कि ions क्या होते हैं, because बहुत बार ये terminologies use कर लिए हमने। Cation, anion, ये क्या थे, basically ions. Ions are maybe an atom or group of atom carrying some charge, maybe positive, maybe negative. So दो टाइप के ions होते हैं, simple ions और polyatomic ions. ठीक है, ions क्या होते हैं, charge particle, either positive, negative, either atom or group of atom. Simple ions मतलब when your atom is carrying some charge, just like metal, positive charge, your non-metal, negative charge. Polyatomic, group of atom carrying charge, sulfate, ammonium and so on. Yeah, so cations carry positive charge and anions carry negative charge. That could be an atom or group of atom. So I hope when I was talking about what is cation and anion that's moving towards the rods, that is a cathode and anode, that pretty much makes sense to you. Yeah, so I hope whatever I told you about electrolytes and this process called as electrolysis is pretty much clear, because if these points are clear, we will be totally able to understand how an electrolysis process occurs. तो नेक्स्ट सेशन में डिटेल से करेंगे उसको इलेक्ट्रोलिसिस एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, तो अभी के लिए कुछ होमवर्क है, दैट्स राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। 1 से 2 चलेगा।
and why groundwater conduct electricity, explain. So do let me know in the comment section. Your comments are very much important just to know okay, you're getting everything. So this is done everyone. Electrolysis we'll do that in next session. तो वेदांतु प्रो कोर्स के लिए कैसे अप्लाई करोगे? वेदांतु 19 चैनल ने जो पिन किया है लिंक, उस पे जाओ, अपना ग्रेड सेलेक्ट करो ICSE 2021 और प्रो सब्सक्रिप्शन को चूज कर लो. कैसे? 3 model will come 1 month, 3 months and 6 months. The only difference is a monetary benefit. तो जैसे ही आप वेदांतु से जुड़ोगे आपको 20 से 43% डिस्काउंट मिल सकता है. एंड हाउ यू विल गेट द डिस्काउंट? इफ यू विल अप्लाई द कूपन कोड AGPRO, AGPRO. ठीक है, तो just save it by applying the code and you will get the link. Okay students, so I hope this lecture is super duper clear क्योंकि बहुत easy था, बहुत ही आसान था and it's more of like your revision. So do let me know by your comments and keep liking the video. Stay tuned always. If you're new to this channel, please subscribe and you can reach out to ma'am as well. I'll see you next time. Until then, take care of yourself. Bye bye. Stay tuned. Keep revising.